Okay, this is implicit differentiation, but first let me tell you about implicit functions. The functions so far that we have considered and we have take their derivatives, and these functions are in explicit form, mean ke y defined explicitly as a function of x. What mean by explicitly as a function of x? Mean ke y is alone on one side, and on the other side we just have a function of x. Mean ke we have something which involves x here, but no y on the right hand side, but y alone is on one side. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y का क्या ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो भी होगा. ठीक है, ये तो है y इज़ एक्सप्लिसिट फॉर्म में और y एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ x. बट इम्प्लिसिट में ये होता है, इन इम्प्लिसिट फॉर्म you cannot write y alone on one side, or you just cannot solve that equation in term of y, or you cannot solve for y easily. ठीक, for example here if you see ये वाली example अगर आप देखो, इसमें y एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है. अगर आप इसको सॉल्व फॉर y करना चाहो you cannot do it easily. मीन क्या, और एक y इधर भी आ रहा है. ठीक, मतलब y अकेला एक साइड पे और बाकी on the other side it should be just a function of x, nothing else. मतलब x के अलावा x यानी y नहीं होना चाहिए on the right hand side, just an expression in term of x, constants हों, multiples हों, लेकिन x हो. ठीक है, x की टर्म में, तो इसको हम easily नहीं लिख सकते. अब जब इसको हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते तो हम डेरिवेटिव इस तरह के फंक्शंस का कैसे लें? इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. एंड हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फंक्शन सिंस y इज़ नॉट अलॉन ऑन वन साइड, तो हम dy ओवर dx कैसे निकालें फिर इन फंक्शंस में? तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने को कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. ठीक, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब आपने dy dx निकालना होता है लेकिन y अलग से एक साइड पर नहीं होता. ठीक, now we will see that how we will take its derivative. Here we have a function which is in implicit form, so the simple you just need to take the derivative on both sides, but since it's dy over dx, you at the end you have to find dy over dx. Remember this, you had to find at the end. तो it means dx से पता चला you have to take the derivative with respect to x. तो दोनों साइड पे आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक, आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. Here on the left hand side I have two terms, so I will take the derivative of each terms. So derivative of x squared, since I am taking the derivative with respect to x, I will use the power rule. 2 नीचे आया, x में से एक पावर कम हुई, अब बेस इज़ x, और x का डेरिवेटिव सिंस विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, वो लिखें ना लिखें एक ही बात है, इट्स 1. दैट्स वाई द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज़ 2x. व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर्ड? नो, here I have y squared, not x. So first I will apply the power rule. 2 नीचे आया, y पावर में से एक कम हुआ. अब बेस, what was the base in y squared? बेस हमेशा वो होता है जिसका वो होल स्क्वायर होता है. So y is base here. Since I am taking the derivative with respect to x, and derivative of y with respect to x is not 1, जब y का with respect to x dy over dx होता है. जिस तरह हम लिखते थे ना y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 है या 2x है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते थे तो y की जगह क्या लिखते थे जब डेरिवेटिव लेते थे? dy over dx, और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2. सिमिलरली हेयर we have y squared, so first we will apply the power rule to y, and then the derivative of base which is y, so dy over dx. so ये चीज़ है y squared का डेरिवेटिव with respect to x. 1 is a constant, derivative of a constant with respect to any variable is 0. अब यहाँ पे सिंस हमने क्वेश्चन में dy over dx निकालना है, तो यहाँ से dy dx एक साइड पे रहने देंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो दैट इज़ आवर आंसर माइनस x और y. आई थिंक इट्स क्लियर. इफ़ नॉट लेट्स see one or two more example. Let's थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं या 4 देख लेते हैं, क्योंकि 4 में थर्ड भी कवर हो रहा है और सेकंड भी कवर हो रहा है. Here you see this is your function in implicit form because y is not alone on one side. आप उसको easily कर भी नहीं सकते, अकेला मतलब अलग कर भी नहीं सकते. So now you have to find the derivative with respect to x. दोनों साइड पे you need to take the derivative with respect to x.
On the left hand side you have two terms अलग अलग, और on the right hand side you have this 3x, इसका डेरिवेटिव. अब on the left hand side derivative of x cubed with respect to x is 3x square by power rule. Derivative of y cubed, first you will apply the power rule, 3y squared, and since base here is y, so then the derivative of base with respect to x. Remember, जब भी आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो ना, वहाँ पे dy dx ज़रूर आना है साथ, ठीक, dy dx ज़रूर आना है by the chain rule. And on the right hand side if you see you have 3 तो चलो कांस्टेंट है, 3 को तो आप इस डेरिवेटिव के पूरे बाहर भी लिख सकते थे, बट x y now they are being multiplied, so now you have to use the product rule. प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले आप एक का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे का नहीं लेते. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही आ जाएगा, y का नहीं ले रहे अभी और x का ले रहे हैं. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक. एंड फिर हम 3x को लिखेंगे और y का डेरिवेटिव लेंगे, सिंस द डेरिवेटिव इज़ विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का फिर 1 नहीं ना होगा, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx. हियर इफ़ यू सी, जब आपने डेरिवेटिव ले लिया you will get this equation, and in this equation you have dy over dx at two places, and at the end you have to find dy over dx. दो जगह हैं तो आपने कॉमन लेना है उनको. dy you can shift all terms which contains dy dx on one side, and all the remaining thing which does not have dy dx in it will be on the other side, ठीक. इस dy dx को इसके साथ शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी ये 3x स्क्वायर को दूसरे साइड पे. फिर dy dx क्योंकि दो जगह आ रहा था, आप इसको कॉमन ले लोगे, ठीक, कॉमन फैक्टर बना लोगे. कॉमन लेने के बाद देन दिस थिंग इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, ये दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. 3 सब में था तो वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज़ आवर आंसर. ओके, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6. इसमें भी दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक. डेरिवेटिव लोगे बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x. ये जो राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ठीक, और लेफ़्ट हैंड साइड पे यू हैव 3 फंक्शंस, 3 टर्म्स हैं, हर टर्म्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे. इन फर्स्ट टर्म you will use the product rule because there are two function which are being multiplied. Here again you will use product rule और यहाँ पे पावर रूल, ठीक. प्रोडक्ट रूल में पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल y स्क्वायर का ले रहे हो, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर एंड देन बेस का डेरिवेटिव dy dy. रिमेंबर whenever you are taking derivative of y with respect to x तो आपने dy dx साथ ज़रूर लिखना है. सो y क्यूब का डेरिवेटिव ये आ गया और x स्क्वायर एज इट इज़ रिपीट हो गया. देन प्रोडक्ट रूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस पर. अब y क्यूब एज इट इज़ आ गया और x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. Then you will apply the product rule on the second term. Similarly, in the same way, first you will take the derivative of y, which is dy over dx, and x as it is, and then you will take the derivative of this x with respect to x, which is 1, and y as it is, and here you will use the power rule. ठीक, ये करने के बाद you will simplify it a little bit, and after simplification you will see that you have dy dx at 3 places. ठीक, तो इनको आप एक साइड पे रहने दोगे, उससे कॉमन ले लोगे और बाकी चीज़ें दूसरे साइड पे, एंड देन एट द एंड ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये चीज़ यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, एंड दैट इज़ योर आंसर. हाउ टू टेक दिस सेकेंड डेरिवेटिव फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस. ठीक, सिंपल है. पहले आपने यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है 2 टाइम्स है, पहले आपने 1 टाइम लेना है जिस तरह आप लेते हो. ठीक, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx. यहाँ से dy dx निकालना है. अच्छा, इसमें बस एक बात आपने नोट करनी है, आपने ना जब एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ पे फंक्शन का यहाँ से दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं करना. आपने उसको dy dx निकालना है और उसके बाद डेरिवेटिव लेना है. ठीक, यहाँ से देखो हमने फ़र्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, उसके बाद जैसे हमने क्या किया, आई जस्ट kept this dy dx on the one side and I shifted all the other things on the other side.
सो दिस इज़ नाउ माई डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स निकालने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। डी वाई डी एक्स फॉर्म में निकाले वो, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो मेरा फंक्शन आया है डी वाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई, नो आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, दिस इज़ जस्ट नोटेशन, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, जब इसका 2 बार लूँगी तो ये नोटेशन यहाँ पे स्केयर लगता है, इधर इसके ऊपर स्केयर लगता है, यहाँ पर एक्स के ऊपर स्केयर लगता है, ये नोटेशन है। इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है कि ये इसका डेरिवेटिव, ये तो जस्ट नोटेशन है। डेरिवेटिव तो आप राइट साइड पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। हेयर यू हैव 2 फंक्शंस और डिवाइड हो रहे हैं, यू विल यूज़ द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में फर्स्ट यू विल टेक, ये नेगेटिव साइन वैसे ही साथ लिख दिया ये वाला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ द 1 एंड into the denominator and then minus sign. Now the derivative of the denominator y है, y का derivative with respect to x is dy over dx into numerator which is x and divided by denominator का whole square which is y square. So यहाँ पे quotient rule apply किया, you got this one। अच्छा, अब इसका आंसर जो है वो आपका यहाँ तक नहीं लिखना, आप ये लिखोगे तो ये is not complete। why? बिकॉज जब आप डेरिवेटिव लेते हो ऑन द अदर साइड देयर शुड नॉट बी एनी डेरिवेटिव साइन देयर। यहाँ पे डी वाई डी एक्स आ रहा है, यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स विच यू ऑलरेडी हैव एवेल्यूएटेड, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक टाइम डेरिवेटिव लिया है तो उसका सेकेंड टाइम ले रहे हो ना, तो यू ऑलरेडी हैव दिस वन डी वाई डी एक्स, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हेयर, ठीक। यहाँ पे जस्ट वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की जो हमने ऑलरेडी निकाली थी, आगे जस्ट थोड़ी बहुत एलसीएम लिया, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन है, तो आपका ये आ गया आंसर यहाँ तक ये, ठीक। अब यहाँ पे मैंने उसको ये क्यों लिख दिया, इस चीज़ को 1 क्यों लिख दिया, समटाइम्स ये वैसे सेकेंड डेरिवेटिव में ऐसा होता है। सेकेंड डेरिवेटिव में आप देखोगे जब भी आपका एंड में आंसर होता है तो आप आंसर में क्वेश्चन का पार्ट यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो जहाँ कहीं भी आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगर सेकेंड डेरिवेटिव में आ रहा है, यू कैन रिप्लेस दिस होल थिंग विद 1 बिकॉज बाय यूजिंग द क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो आपका आंसर सेकेंड डेरिवेटिव का ये आ गया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देखो सेम उसी तरह आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले सिंगल टाइम निकालोगे तो आप उसका डबल लोगे ना, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y dy dx ये आ गया। अब इसका 12 डेरिवेटिव लिया, ये वाली साइड तो जस्ट नोटेशन ये बन गया, और दो राइट हैंड साइड में आपने क्या क्वोशंट रूल लगाया, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज़ 2 और y साथ आ गया, देन माइनस 2x एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एंड देन रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स ओवर हेयर। जो आपने निकाला होगा उसे पुट करना नहीं भूलना, यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करनी है इसकी डी वाई डी एक्स की, वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर देखना है क्वेश्चन का कोई पार्ट उसमें यूज़ हो सकता है कि नहीं। अब जब हमने सिंप्लीफाई किया उसको यहाँ तक पहुँचा, if you see in the question you have 4x squared minus 2y squared is equal to 9। ये मतलब अगर हमारे पास ये चीज़ कहीं आ रही है तो I can replace this thing with 9। तो हम देखते हैं कहीं आ रहा है, अगर आप देखो ये चीज़ आलमोस्ट वही बन रही है लेकिन बस ऑर्डर चेंज है, जहाँ पे 4x स्क्वायर पहले है ये बाद में है। तो अगर मैं इफ़ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस थिंग सो ये वही बन जाएगा, तो इट्स मीन्स कि आई कैन राइट दिस थिंग विथ -9, क्योंकि ये 9 है तो ये -9 है, तो दिस इज़ दिस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन -9 ओवर y क्यूब्ड, ठीक। टेंजेंट लाइन का जिस तरह हमने पहले किया था कि हाउ टू फाइंड दी, ये टेंजेंट लाइन है, ये तो टेंजेंट स्लोप है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब होता है डेरिवेटिव। जब भी आपको किसी फंक्शन का कहेगा स्लोप निकालो टेंजेंट लाइन का, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे सिंस इट्स एन इम्प्लिसिट फॉर्म, तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव की तरह हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे। स्लोप इस पॉइंट पे कह रहा है,
तो इसमें हम x की जगह 2 और y की जगह -1, देयर इज़ नो x हेयर, सो y है, y की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, स्लोप है टेंजेंट लाइन का। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, यहाँ पर स्लोप सिर्फ निकालने को कह रहा है, मतलब सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब है हमने सिर्फ ये निकालना था f डैश ऑफ -1, सर f डैश ऑफ 2, x2 था, f डैश ऑफ 2 निकालना था। अब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता था, y माइनस y1, या आप यूँ लिख सकते थे, उसका क्या था, y माइनस एफ ऑफ a इज़ इक्वल टू f डैश ऑफ a x माइनस a। ये a क्या होता था, ये वो पॉइंट होता था, जैसा इस केस में ये पॉइंट कह रहा है ना, ये उसका x कंपोनेंट, दिस इज़ माई a, दिस इज़ a, ठीक, ये x a है। और ये f ऑफ a क्या है, इज़ द आउटपुट ऑफ दैट वैल्यू a, मीन के उसका y कोऑर्डिनेट, ये अगर a है तो ये उसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a है, ठीक। और f डैश ऑफ a क्या है, जो उसका डेरिवेटिव लोगे उस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है, ठीक। तो ये फार्मूला है, तो इट्स मीन कि मुझे सबसे पहले डेरिवेटिव चाहिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद ये dy dx निकल आया, dy dx मीन के f डैश, dy dx क्या होता है, f डैश। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। किस पॉइंट पे निकालना था, इस पे, तो इसमें x की जगह 3/2 पुट करना है, y की जगह 3/2 पुट करना है। ये पुट करने के बाद कैंसिलेशन हो गया और ये आ गया डेरिवेटिव। मीन के डेरिवेटिव का मतलब है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन यहाँ पे मैंने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वही y माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू एफ डैश ऑफ a x माइनस a। तो f ऑफ a वो भी 3/2 है, f डैश ऑफ a ये निकाला हुआ है, और यहाँ पे x माइनस a, और ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक। एंड वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज़ फॉर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y है, y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आगे से x एक कोर वेरिएबल का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल t, ठीक, टाइम t का। तो अब x भी t का फंक्शन है, इसका मतलब है y भी t का फंक्शन है। तो अब हमने रेट ऑफ चेंज, अगर हमें x का रेट ऑफ चेंज अगर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू t, फॉर एग्जांपल कोई टाइम है, तो y का अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो कोई जस्ट मैथमेटिकल एग्जांपल है, लेट्स गिव सम रियल एग्जांपल। ये आप देख लो रियल एग्जांपल। इसमें एक स्फेरिकल बलून है, इज़ फिल्ड विद एयर, और उसका रेडियस है, मतलब एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, और उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसमें आप एयर फिल करते जा रहे हो। तो रेडियस जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेट गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका रेडियस 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इस तरह इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब जारी बात है, जब रेडियस इंक्रीज़ होगा तो इसका वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। रेडियस का रेट ऑफ चेंज गिवन है, आपने वॉल्यूम का देखना है, हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम चेंजिंग एट टाइम, मीन के रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का देखना है। वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई, पाई तो कांस्टेंट है, 3 पाई समथिंग 3.14 समथिंग होता है। आर जो है रेडियस है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम फिर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जितना रेडियस बड़ा होगा वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं चेंज होना। रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसका मतलब है v जो है, मेरा v जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ r है, मीन के v डिपेंड्स ऑन r, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या देखना है, क्वेश्चन में मैंने फाइंड करना है हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम चेंजिंग एट दिस टाइम, मीन के रेट ऑफ चेंज जहाँ भी आएगा इट मीन डेरिवेटिव। मैंने डेरिवेटिव निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि विद रिस्पेक्ट टू एट दिस टाइम, इसका मतलब टाइम के हिसाब से देखना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक। अब 4/3 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। अब ये रेडियस, अब रेडियस भी टाइम पे ऑफ कोर्स डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसने दिया हुआ है, उसने कहा अगर रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, इसका मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, जिस तरह आप y का लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, अब r का लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले पावर रूल 3
आर स्क्वायर, क्योंकि आप आर का ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी आर ओवर डी टी साथ आएगा। जिस तरह आप वाई का लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स साथ आता है, तो यहाँ पर डी आर ओवर डी टी साथ आएगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वॉल्यूम था, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड पे, ठीक। उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया। अब जो वैल्यूज़ गिवन थी आर 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 6 लगा दिया, 6 का स्क्वायर, और डी आर ओवर डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हमें कैसे पता चला कि ये डी आर ओवर डी टी है? उसने कहा था कि रेडियस चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस इज़, मतलब रेडियस अगर आर है तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स मीन कि इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे डी आर ओवर डी टी 2 सेंटीमीटर गिवन था, वो सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो ये वॉल्यूम मिल गया हमें। वॉल्यूम इसका मतलब है 288 पाई, पाई है 3.14 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर क्यूब्ड वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। ओके, नाउ इज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, सम टाइम अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में हो, मीन के योर बेस इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड योर पावर एक्सपोनेंट इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ तक अभी जो आपने किया था, फॉर एग्जांपल अगर बेस आपका वेरिएबल है एंड पावर कांस्टेंट है, तो उसका जब डेरिवेटिव लेते हो तो पावर रूल लगाते हो, ठीक है। पावर रूल तब लगाते हो जब आपका ये एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, ठीक। तो आपका डेरिवेटिव ये आ जाता है, यही आता है ना। तो ये पावर रूल में आपका जो पावर होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। और अगर आपका इस तरह का फंक्शन हो, कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल ऊपर है, फिर तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था, क्योंकि ई पावर एक्स, ई भी तो नंबर है तो 2 भी नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ इटसेल्फ आता है, और फिर लॉग ऑफ दिस बेस साथ ज़रूर आता है, लॉग ऑफ दिस बेस। और फिर ऊपर अगर x कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, इस केस में x जस्ट x है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय चेन रूल। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ और साथ लॉग ऑफ बेस ज़रूर आता है। और पावर रूल में जो पावर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन ये डिफरेंट है, ये जो चीज़, ये मीन के बेस भी कह रहा है कोई वेरिएबल है, पावर भी कोई वेरिएबल है, यानी पावर में इस तरह से है। अब इसको कैसे करें? यू कैन नॉट यूज़ पावर रूल हेयर बिकॉज दिस पावर इज़ नॉट अ कांस्टेंट नंबर, ठीक। ऑल्सो यू कैन नॉट यूज़ दैट एक्सपोनेंशियल फार्मूला हेयर, मीन की डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ एक्सपोनेंशियल में बेस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो इट मीन्स इस तरह का अभी तक आपने नहीं किया हुआ जिसमें बेस भी वेरिएबल है और जिसमें एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम करते हैं लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से। ये क्या होता है कि आप दोनों साइड पे लॉग ले लेते हो, नेचुरल लॉग ले लो, जो मर्जी लो, नेचुरल लॉग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे। उससे फ़ायदा ये होता है कि नाउ यू कैन यूज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि अगर आप कोई फंक्शन हो, जैसा अगर मैं यहाँ पे इसके लॉग लगा दूँ साथ, लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर में जो चीज़ होती है, दिस कैन गो बिफोर ln, बिफोर लॉग। तो ये चीज़ जब नीचे चली जाएगी तो वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, ठीक। फिर यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट इट। सो दैट इज़ लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन, कि आपने लॉग लेना दोनों साइड पे पहले और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। और सम टाइम इवन के कुछ अगर आपका इस फॉर्म में है भी नहीं, लेकिन योर फंक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ रहा है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल इनसाइड अ क्वोशंट रूल एंड देन अगेन प्रोडक्ट रूल इनसाइड दैट प्रोडक्ट रूल। तो उससे बचने के लिए आप सम टाइम करते हो लॉग ले लेते हो, लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करके उसको पहले सिंप्लीफाई पीसीज में बना लेते हो, फिर आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हो। ये भी नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं। पहले हम ये वाली टाइप देख लेते हैं जिसमें पावर भी आपका वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है, लाइक दिस एग्जांपल। इसमें आप देखो योर वेरिएबल, योर बेस इज़ x स्क्वेयर्ड प्लस 1 एंड योर एक्सपोनेंट इज़ साइन x, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव ना आप पावर रूल से ले सकते हो, ना आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वह जो रूल है उससे ले सकते हो इसका डेरिवेटिव। तो हम ले लेते हैं लॉग दोनों साइड पे, हम दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं ln।
फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी इसके राइट हैंड साइड पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे हम इसका। ठीक, अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है, ln y का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय पावर रूल पहले साइन का लेना है ln एज इट इज़, फिर साइन एज इट इज़ ln का लेना है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा y नहीं है, देखो यहाँ पे क्योंकि y से हम ln y में आ गए हुए हैं। अब डेरिवेटिव हमने y का नहीं लेना, ln y का लेना है। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x। ठीक, अब यहाँ पर x की जगह y है तो ln y का डेरिवेटिव 1/y, क्योंकि y जो है विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो डी, रिमेंबर जब भी आप y है और उसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हो डी वाई डी एक्स ने तो आना ही आना है साथ। ठीक, बाय द चेन रूल, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव तो आना ही आना होता है। सो ln y का डेरिवेटिव 1/y डी वाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव cos x ln एज इट इज़, फिर साइन x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ ln का डेरिवेटिव यही होता है 1/द सेम थिंग, और फिर इस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर होता है। जैसा 1/ln x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, वो तो ऊपर होता ही है। लेकिन इस केस में x² + 1 और x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, वो ऊपर आना है। ठीक, उसके बाद ये जो 1 क्योंकि हमने एंड में क्या फाइंड करना है, dy/dx। यहाँ पे जो हमने एवेल्यूएट किया ये 1/y d/dx है। इट मीन्स ये 1/y एक्स्ट्रा है, तो इस y को हमें दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं देना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा फंक्शन x की टर्म में होना चाहिए। तो इस y को हमने रिप्लेस करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ से? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में y है ना, तो y की वैल्यू आपने क्वेश्चन से यहाँ पे प्लग इन कर देना है। तो दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये लास्ट वाला देख लेते हैं या ये वाला देख लेते हैं, एनीवन, एक जैसे ही हैं। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, थर्ड। लेट्स सी दिस थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे भी देख लो, बेस इज़ अ वेरिएबल, एक्सपोनेंट इज़ अ वेरिएबल। फर्स्ट आई एम टेकिंग log on both sides, then I am using the property of log on the right hand side. This ln will go before this log, and then I will take its derivative of both sides. Derivative of ln y will be 1/y dy/dx, and here I need to use the product rule. First I will take the derivative of ln, which is 1/x, then this function as it is, and then plus ln as it is, and the derivative of this thing. Derivative of this thing is 1/that thing, 1/that thing, और जो नीचे आप लिखते हो उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है 3x² - 2। सो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग। ये आ गया। उसके बाद सिंस मुझे dy/dx चाहिए था, ये 1/y एक्स्ट्रा था, y को उधर शिफ्ट किया और देन y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। कहाँ से रिप्लेस की? फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो y की वैल्यू थी वो वहाँ रिप्लेस कर दी। ठीक, एक तो हो गया कि हम log लेते हैं दोनों साइड पे, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ log, एंड देन वी विल टेक इट्स डेरिवेटिव। ये तब होता है कि अगर आपका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, उसके ऊपर एक और फंक्शन है। इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव जब भी लेना हो तो आपने मेथड ऑफ लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। लेकिन ये मेथड आप इस तरह के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर देखो ना, इसमें वो नहीं है कि वेरिएबल के ऊपर वो वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट सिंपल है, मतलब इसमें जस्ट आपने क्वोशंट रूल लगाना था। ठीक, लेकिन इसमें अगर आप क्वोशंट रूल पहले लगाओगे और फिर क्वोशंट रूल के अंदर, क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर प्रोडक्ट रूल के अंदर आप पावर रूल लगाओगे, तो काफ़ी आप लोग को लगेगा ये तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको लगे फ्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप मेथड ऑफ लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन इसमें भी लगा सकते हो। आप दोनों साइड पे लॉग ले सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों साइड पे लॉग लिया। लॉग लेने का फ़ायदा क्या होता है कि आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर दी प्रॉपर्टी? एक तो होता है पावर लॉग से पहले आ जाता है, दूसरा होता है अगर डिवीजन हो तो वो ब्रेक हो जाता है और दरमियान में माइनस साइन होता है, अगर प्रोडक्ट हो तो वो ब्रेक हो जाता है और दरमियान में प्लस साइन आता है। पहले हम डिवीजन को ब्रेक करते हैं जो फ्रैक्शन है। ठीक, तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा, देन डिवीजन में माइनस साइन आता है ना, देन लॉग ऑफ
न्यूमिनेटर डिवाइडेड माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। उसके बाद ये जो फर्स्ट लॉग देखो, इसमें यू हैव टू फंक्शंस एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लायर को आप फिर अलग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस समेशन साइन बिटवीन देम, ठीक। और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया। आप इसके पावर को स्टिल आप शिफ्ट कर सकते हो। अभी हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, अभी हमने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं किया। ये 4 भी इधर शिफ्ट हो गया और इसकी होल पावर 1/3 है, वो भी इधर शिफ्ट हो गया। इस x स्क्वायर की पावर 2 है, वो भी इधर शिफ्ट हो गया। अब ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। यानी हमने इसको फंक्शन को लॉग लिया और उसको सिंप्लीफाई किया। डेरिवेटिव अब हमने लेना स्टार्ट किया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका लेना है। अब देखो ना 2ln x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका। अब इसका डेरिवेटिव में कोई हमें प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगाना नहीं पड़ेगा, हमें बस ln का डेरिवेटिव आना चाहिए। क्या होता है ln x का 1/x आ गया, ln ऑफ दिस थिंग का डेरिवेटिव 1/दिस थिंग और दिस थिंग का डेरिवेटिव ऊपर। सिमिलरली ln ऑफ दिस थिंग का दिस थिंग एंड दिस थिंग का डेरिवेटिव ऊपर। ये बस डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर 1/y एक्स्ट्रा है, y को उधर शिफ्ट किया और फिर हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कहाँ से? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में y था, y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। और इसको अगर आप बेशक मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज़ योर आंसर। यू कैन ट्राई द सेम क्वेश्चन यूजिंग द क्वोशंट रूल। तो आप देखो कि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका किसी तरह सिंप्लीफाई करके यही आएगा। देखने में हो सकता है आपको एग्जैक्टली ये ना लग रहा हो, लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल इसके ब्रैकेट्स को खोलो और उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो तो आंसर होगा वही जो आपको क्वोशंट रूल से आ रहा होगा।